Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I formally welcome you to today's class. बहुत important topic हम आज की क्लास में डिस्कस करने जा रहे हैं. That is case for Kashmir. This is one of the most important topics that has been repeatedly asked in past papers and has been subject to the current debate. Ongoing इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान जो पीस प्रोसेस है उसके लिए इस टॉपिक को समझना बहुत इम्पॉर्टेंट है. This topic में let's see what we are going to discuss. What are the things we are going to talk about? These include but the following, but are not limited to. Let's give it a name. K is for Kashmir. That is the new map on part of Pakistan. जिसमें हमने पूरे का पूरा कश्मीर दिखाया है कि it belongs to Pakistan. And on the other hand, we have the map from India, जिसमें कश्मीर को bifurcate किया गया है after the revocation of Article 370. Let's see, आज की हमारी outline क्या है. We will be talking about an introduction followed by the geography of Kashmir, Kashmir conundrum through prism of history. I have been repeatedly insisting कि हम किसी भी टॉपिक को जब तक एक broader descriptive manner में तैयार नहीं करेंगे, it will be quite difficult for us to land into a clear-cut analysis as to what has happened, when, and how. We will also talk about the central debate to this particular question, and that is what is Article 370. Why did India revoke it? Its implication and possible options for Pakistan. This was exactly the same question that was asked in 2020 current affairs, and all those who were my students, they particularly know it. किस तरीके से हमने उसे क्लास में पहले भी कवर किया था, and an added dimension had been added to the new entrants. Will Kashmir become India's Afghanistan? We will underline the fact कि क्या एक इंसर्जेंसी को by virtue of force suppress किया जा सकता है. Would that be a long-term strategy that can help India, or it would actually lead to more conflicts in India and would set a bad precedent for the regional peace and security? Why is Kashmir important for Pakistan? Why are India and Pakistan fighting for that? We will also talk about that. फिर एक और सवाल है जैसे 2021 के जो है वो पेपर में पूछा गया, व्हाट हैज पाकिस्तान सो फॉर डन फॉर द कश्मीर कॉज. आमतौर पर हमारे यहाँ डिस्कोर्स में ये डिबेट मौजूद है कि पाकिस्तान हैज बीन मेंटेनिंग अनफॉर्चुनेटली गिल्टी साइलेंस and has not been able to properly put up a case before international community to actually talk about the idea of Kashmir. In this debate, we would argue it is not so. Pakistan has done everything in its power and continues to do more and more things with each passing day in order to make this cause the global cause. फिर ये कि कश्मीर के सॉल्यूशंस क्या हैं, हम उन सॉल्यूशंस के जो प्रोज एंड कॉन्स हैं उनको देखने की कोशिश करेंगे कि हाउ कैन amicable solution be brought to this particular part of it. Then the debate will be followed by the conclusion. So हम एक इंट्रोडक्शन डेवलप करेंगे, लेकिन उससे पहले जैसे हम बात करते हैं कि हम क्वेश्चंस डेवलप कर रहे हैं कि इसके ऊपर क्या पूछे गए हैं. Given the volatile lockdown in Indian occupied Kashmir, what are the various policy choices available to Pakistan? What can Pakistan realistically do to ease the sufferings of Kashmiri people? Elaborate Kashmir issue and the major developments since 1947. How far war on terror has negatively affected the Kashmir cause? Why did India abrogate Article 370? Discuss its implications and the future. Is plebiscite is still a viable option? Followed by, will Kashmir become India's Afghanistan? Prepare a study in which you assess the possibility of settlement of Kashmir conflict, such as in the case of East Timor or the Bosnian crisis. What are similarities between Kashmir conflict and Nagorno-Karabakh? ये कुछ बेसिक क्वेश्चंस हैं जो कि पूछे गए हैं इस पर्टिकुलर डिबेट के हवाले से. और इसमें जो डिबेट आप ऐड कर सकते हैं वो ये भी है कि कश्मीर के साथ आप ये जो है गुड फ्राइडे एग्रीमेंट की क्या रेलेवेंस है वो भी इसमें ऐड हो सकती है. सो लेट्स टॉक अबाउट इन इंट्रोडक्शन नाउ. कश्मीर के मसले की जब भी हम बात करते हैं तो दिस इज द बाय प्रोडक्ट ऑफ द पार्टीशन ऑफ इंडिया दैट एक्चुअली हैपेंड इन 1947. Third June plan and the mismanagement and the well planned mismanagement in the Radcliffe Award actually led to Indo-Pak War in 1948. 3 wars have been fought over Kashmir. Multiple human rights abuses has been
done by India in occupied Kashmir. And two countries have actually added a nuclear dimension to this conflict, but nothing has still been achieved to actually resolve this particular issue. According to Stephen P. Cohen, Kashmir is the most important single conflict in the subcontinent, not just because its territory and its population are contested, but because the larger issues of the national identity and regional power balances are embedded in it. This actually shows that Kashmir is important for two countries, but to whom Kashmir actually belongs is the subject of the matter, it's the subject of the debate to this day. We as Pakistanis believe that Kashmir is the unfinished business of the partition, and Kashmir, from cultural, lingual, ethnic, and religious as well as the geographical point of view, actually belongs to India. Recently, Pakistan has given a new option to the Kashmiris as well. Okay, after the plebiscite, I mean, once this issue is particularly resolved, Kashmiris would have a choice either to be with Pakistan or stay independent. Whereas in India, the narrative is simple. Kashmir is part of India, in fact, the internal part of India, and that is part of the larger strategic narrative of the Indian political and strategic community. That is also the part of the manifesto of the BJP or RSS mindset of Akhand Bharat, the greater India, that actually tries to colonize Kashmir, its people, its land, and its territory, but has done nothing concrete to alleviate the sufferings of Kashmiri people. काफी सारे ऑप्शंस कश्मीर के मसले के दुनिया के सामने रखे गए हैं. Wars have been tried, लेकिन we have seen that Kashmir issue, according to PM of Pakistan, could only be resolved through dialogue, as the war could not be a solution to any problem, and those looking for that option were nothing but mere fools. We will have a debate on the idea of four-point formula as put forward by the then President of Pakistan, Army Chief General Pervez Musharraf. There would also be debate about the possibility of independent Kashmir. Then we will also give this debate a new perspective कि क्या लाइन ऑफ कंट्रोल या स्टेटस को एक ऑप्शन कंसिडर किया जा सकता है, एंड हाउ डू कश्मीरी एज अ पार्टी एज अ स्टेक होल्डर इन दिस पर्टिकुलर कॉन्फ्लिक्ट actually see that particular option. Having said that, let's move on to the next thing. Pakistan's ambassador to United Nations rightly pointed out, before we formally move to the further debate, that in Jammu and Kashmir, India has no other claim than that of the military occupier. It is compelled to use naked force to impose its occupation on an unwilling and oppressed people. Ask the people of Jammu and Kashmir, and they will tell you emphatically, Jammu and Kashmir is not a part of India. It never was, and it never will be. So this is the largest sentiment that has been shared by Kashmiri people, and this is exactly the reason why Pakistan as a state, and we Pakistani as Kashmiri, as a brethren of Kashmiri people, are actually supporting this cause. अब इसको हम थोड़ा सा मैप के ऊपर देख लेते हैं कि जी ये जो कश्मीर हमें नजर आता है, कश्मीर जन्नत नज़ीर, ये बेसिकली तीन जो है वो हिस्सों में बटा हुआ है. तीन मेजर पावर्स इसके इन एंड अराउंड है. वी हैव इंडिया ऑन वन हैंड, वी हैव पाकिस्तान ऑन द अदर, एंड फाइनली द चाइना ऑन द अदर साइड ऑफ द डिबेट. एक पार्ट है जिसको हम आज़ाद कश्मीर कहते हैं, और उसे पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेड नहीं बल्कि आज़ाद कश्मीर बेहतर नाम देंगे. एक है इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर, जहां पे इंडिया ने मिलिट्री के थ्रू जो है वो अपनी मेंटेनेंस जो है वो ऑक्यूपेशन की मेंटेन की हुई है, और कुछ पार्ट जो है वो फिर चीन को दिया गया है. कश्मीर का स्टेटस है क्या मौजूदा हालात में? वी नीड टू एनालाइज दैट स्टेटस इन अ बिट डिटेल मैनर. कश्मीर, आप सिंपल जहन में रख लें कि एक तो मुस्लिम मेजॉरिटी रीजन है, और इस मुस्लिम मेजॉरिटी रीजन को इंडिया और पाकिस्तान दोनों क्लेम करते हैं, और ये 1947 के पार्टीशन ऑफ इंडिया के नतीजे में बेसिकली जो है वो एक कंटेंशियस इशू बन गया.
मौजूदा हालात में अगर हम देखें तो यहाँ पे एक लाइन ऑफ कंट्रोल है जो कि इस पूरे रीजन को, कश्मीर के रीजन को डिवाइड करके रखी है, जिसकी एक तरफ पाकिस्तानी ट्रूप्स, दूसरी तरफ इंडियन ट्रूप्स खड़ी हैं, और मिलिटराइज्ड रीजन है पूरी दुनिया का। चाइना भी इस रीजन का कुछ पार्ट क्लेम करता है। एक और जो इंडियन ऑक्यूपाइड पार्ट है, दैट इज अराउंड 45% ऑफ कश्मीर, जो कि ऑफिशियली अब जो है वो इंडियन गवर्नमेंट ने आर्टिकल 370 को रिवोक करके वहां पे बाइफर्केशन जो है वो करा ली है। तो ब्रॉड अगर हम देखें कश्मीर को के इस आईडी को, तो इंडिया कंट्रोल्स अप्रॉक्सीमेटली 55% ऑफ द लैंड, और इंडिया के पास जो रीजन आ जाता है वो है जम्मू, कश्मीर वैली, लद्दाख, सियाचिन ग्लेशियर। पाकिस्तान 35% टेरिटरी आज़ाद करा चुका है, जिसमें इंक्लूडेड है आज़ाद कश्मीर एंड गिलगित बल्तिस्तान। 20% जो एरिया बाकी बचता है, दैट इज कंट्रोल्ड बाय चाइना। और हमने इसके ऊपर बात की थी कि कैसे पाकिस्तान और चाइना के दरमियान बाउंड्री जब एग्रीमेंट हुआ था तो इसके ऊपर बात हो चुकी थी। तो जो अक्साई चिन का रीजन है, जो ट्रांस कराक्रम ट्रैक्ट है, या जो डैम चौक सेक्टर है, ये चाइना के कंट्रोल में आ जाता है। अब हम एक ब्रॉडर कॉन्सेप्ट में देखें कि कश्मीर का जो मसला है, इसके ओरिजिन्स क्या हैं, ये इवॉल्व कैसे हुआ है, और ओवर द कोर्स ऑफ टाइम क्या क्या डेवलपमेंट्स रही हैं। क्या इसमें नेग्लिजेंस सिर्फ पाकिस्तान की थी कि हमने कैपिटलाइज नहीं किया टाइम, सर्कमस्टांसेस एंड जियोपॉलिटिकल कंसिडरेशंस को, या कश्मीरियों की अपनी भी कुछ गलतियां थी जिसकी वजह से ये मसला उस हालत में पहुंच चुका है जो आज है, या फिर इंटरनेशनल कम्युनिटी की एक स्ट्रेटेजिक कैलकुलेशन की साइलेंस है जो कि इस मसले के हल की तरफ हमें नहीं लेके जा रही। दीज ऑल द क्वेश्चंस आर सेंट्रल टू दिस पर्टिकुलर डिबेट। ब्रॉडली आप अगर देखें तो कश्मीर के ऊपर जो पहला जो रूल हमें एक मॉडर्न हिस्ट्री में नजर आता है, वो तभी से नजर आता है जब लेट्स से अफगान इन्वेजन्स होती थी इंडिया में, मुस्लिम रूल एक्सपैंडेड हुआ। तो अफगान जो दुरानी एम्पायर थी, दैट हैज आल्सो रूल्ड कश्मीर इन 17 एंड 1852। जब अफगान एम्पायर कोलैप्स करना शुरू हो गई तो कश्मीर जो है वो ट्रीटी ऑफ लाहौर के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी को दिया गया। ईस्ट इंडिया कंपनी क्या थी? बेसिकली एक कॉलोनाइजिंग फोर्स थी, और उसने इंडिया में मुख्तलिफ जो स्टेट्स थी उनके ऊपर कब्जा कर लिया था, प्रिंसली स्टेट्स के ऊपर, जिसमें बंगाल से उन्होंने शुरुआत की, फिर मैसूर, फिर प्लासी, फिर हर जगह पे वो फैलते गए। ओवर द कोर्स ऑफ टाइम फिर ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या किया कि ये ट्रीटी ऑफ अमृतसर के तहत गुलाब सिंह को दे दिया। सिखों की हुकूमत जब पंजाब पे आ गई तो ये जो पूरा रीजन है वो सिखों को दिया गया, और उसकी जो भी खास पेमेंट थी सिख एम्पायर को फाइनली ये दिया गया। गुलाब सिंह जो कि वहां का रूलर था, ही टुक अप द टाइटल ऑफ महाराजा ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो हम कह सकते हैं कि जो आखिरी रूलर थे कश्मीर के वो सिख थे, और जो डोगरा राज है वो फिर वहां से शुरू होता है। लेकिन एक और जो रिसेंट हिस्ट्री है वहां पर थोड़ा सा जहन में रख लें कि 1846 से लेके 1947 तक जो है वो पार्टीशन ऑफ इंडिया तक, यानी कि 1947 तक कश्मीर के ऊपर डोगरा डायनेस्टी का रूल रहा। ये प्रिंसली स्टेट थी, लेकिन ब्रिटिश का ओवरऑल इसके ऊपर जो है वो कंट्रोल था। यानी कि एक होता है ना कि आपको एज ए प्रिंसली स्टेट तमाम अख्तियार डेडिकेट किए गए हैं, लेकिन यू आर पेइंग सर्टेन अमाउंट ऑफ इंडेमिनिटी एवरी ईयर इन ऑर्डर टू मेंटेन योर कंट्रोल। अब आ जाते हैं कि 1947 में जैसे ही पाकिस्तान आजाद हुआ, एक नई रियासत के तौर पर इमर्ज हुआ, तो क्या सिचुएशन थी? हम देखते हैं कि इंडिया और पाकिस्तान जिस एक्ट के तहत आजाद हुए उसका नाम है इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट। अब इस एक्ट के तहत जो है वो एक बड़ी बात वाजे की गई, जिसको अगर यहाँ पे हम पढ़ भी लें कि द सुज़ेरेनिटी ऑफ हिज मैजेस्टी ओवर द इंडियन स्टेट्स लैप्सेस, and with it all treaties and agreements in force at the date of passing of this act between his majesty and the rulers of the Indian states। इसके बाद बेसिकली आज़ादी दी गई यहाँ पे मुख्तलिफ प्रिंसली स्टेट्स को कि या तो वो आज़ाद रह सकते हैं या नहीं, या तो वो इंडिया को ज्वाइन कर सकते हैं या वो पाकिस्तान को ज्वाइन कर सकते हैं। आज़ाद रहने की जो चॉइस थी वो इन्हें नहीं दी गई। सॉरी। जब
ये चीज दी गई तो कश्मीर वाज नॉट द ओनली स्टेट जिसे ये ऑप्शन दिया गया था बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान. देयर वर अराउंड 561 अदर प्रिंसली स्टेट्स जिनको एग्जैक्टली यही जो थी वो बात की गई थी. अब कश्मीर में अगर आप कंपोजिशन देख लें तो वहां पे जो रूलर था ही वाज नॉन मुस्लिम, लेकिन जो पॉपुलेशन थी दैट वाज मुस्लिम. कुछ रियासतों में ये था कि रूलर मुस्लिम था, पॉपुलेशन नॉन मुस्लिम थी, और वहां पे फिर एक पॉपुलेशन, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक, लिंग्विस्टिक, कल्चरल, रिलीजियस फैक्टर्स को मद्देनजर रखते हुए एक्सेशन के जो डॉक्यूमेंट थे वो साइन किए. 1947 में इलेक्शंस जो हुए थे कश्मीर में, वहां पर एक पार्टी थी, उसका नाम है मुस्लिम कॉन्फ्रेंस पार्टी. उसने ये इलेक्शंस जो है वो जीत लिए थे और बड़ी भारी अक्सरियत से जीत लिए थे. उन्होंने 19 जुलाई 1947 को एक रेजोल्यूशन पास की. क्योंकि 3 जून प्लान आ चुका था तो जुलाई में उन्होंने ये जो रेजोल्यूशन है वो पास कर ली. आप एक चेन ऑफ इवेंट्स देखें कि जहन में क्या चल रही है और सिचुएशन कैसे तब्दील हो गई, कहां तक पहुंची है. जस्ट रिमेंबर इट वंस एंड फॉर ऑल. तो उसने एक स्टेटमेंट जारी किया कि इन व्यू ऑफ द जियोग्राफिक, इकोनॉमिक, लिंग्विस्टिक, कल्चरल एंड रिलीजियस रिलेशंस, कश्मीर मस्ट एक्सीड टू द स्टेट ऑफ पाकिस्तान. जिन्ना साहब ने जो है वो बाद में खतूत भी लिखे, जो कश्मीर का महाराजा सिंह था, आखिरी हरी सिंह था, उससे खतूत भी लिखे कि किस तरीके से इट इज इन हिज वाइटल इंटरेस्ट आल्सो टू जॉइन द स्टेट ऑफ पाकिस्तान. लेकिन कश्मीर में वहां पर एक डिफरेंट थिंकिंग चल रही थी, महाराजा के एक जहन में एक डिफरेंट थिंकिंग चल रही थी. और एट द सेम टाइम इंडियन पॉलिटिक्स में भी एक डिफरेंट किस्म की जो पॉलिटिकल सिचुएशन है वो इमर्ज हो रही थी. हमने ये बात तस्लीम कर ली थी, हमने ये बात देख ली थी कि हाउ इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज नॉट हैप्पी विद द वेरी एग्जिस्टेंस ऑफ पाकिस्तान. तो उनकी कोशिश ये थी कि किस तरीके से अंग्रेज सरकार से मिलकर जितना पाकिस्तान को शुरू से ही कमजोर रखा जाए उतना बेहतर होगा. तो उन्होंने पहले तो ये काम किया कि वो प्रिंसली स्टेट्स जो कि पाकिस्तान के साथ शामिल होना चाहती थी उनको उन्होंने रोक लिया. फॉर एग्जाम्पल, कांग्रेस ने शुरू में क्या कह दिया कि पीपल एंड नॉट द रूलर हैव द राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन, और इस बुनियाद के ऊपर उसने हैदराबाद और जूनागढ़ के ऊपर जो है वो अपना कब्जा कर लिया. हालांकि जूनागढ़ का जो 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 प्रिंस है वो अब भी क्लेम करता है कि जूनागढ़ कुड हैव एक्सीडेड टू द स्टेट ऑफ पाकिस्तान. लेकिन जब इसी प्रिंसिपल के ऊपर बात आ गई कि कश्मीर में ये प्रिंसिपल अप्लाई होना चाहिए, तो वहां पर उन्होंने ये प्रिंसिपल एक्सेप्ट ही नहीं किया सिरे से. अब यहाँ पर थोड़ी सी पॉलिटिक्स ब्रिटिश सरकार की भी शुरू हो गई. बरतानवी सरकार ने, बरतानवी साम्राज्य ने भी ये कदम करना शुरू कर लिया कि जो रेडक्लिफ अवार्ड में चीजें थी जिनके ऊपर जो है वो पार्टीज के दरमियान एक एक्सेप्टेंस आ चुकी थी, तो जो कंसेंसस डेवलप हो चुका था, महाराजा हरी सिंह भी उसके खिलाफ जा रहा था, और जो माउंटबेटन नेहरू नेक्सस था वो तो ऑलरेडी इस बात के खिलाफ था कि पाकिस्तान को ये कश्मीर का हिस्सा मिले. लिहाजा अब सिचुएशन ये डेवलप हो गई कि रेड क्लिफ अवार्ड में वो अजला जैसे गुरदासपुर हो गया, जैसे फिरोजपुर हो गया पंजाब के डिस्ट्रिक्ट से, वो पाकिस्तान को मिलने थे, लेकिन अंग्रेज सरकार ने वो बेसिकली इंडिया को दे दी. यहां से इंडिया को बेसिकली कश्मीर में एंट्री मिलना शुरू हो गई. तो जैसे जैसे इंडिया को स्पेस मिलता गया कश्मीर में इन्फिल्ट्रेट करने का, वैसे वैसे सिचुएशन जो है वो खराब से खराब तर होना शुरू होती गई. एलिस्टर लेम ने अपनी किताब में ये बात बहुत ही वाज़ेह तरीके से लिखी है कि कैसे कश्मीर, द डिस्प्यूटेड लेगेसी, इट इज नॉट जस्ट द डिस्प्यूटेड टेरिटरी, इट इज द डिस्प्यूटेड लेगेसी that Mountbatten altered the Radcliffe Award, giving the Muslim majority Gurdaspur district to India, thereby ensuring the latter a land access to the Kashmir. अब इंडिया कश्मीर में आ गया, यहां से सिचुएशन खराब होना शुरू हो गई. स्लोली एंड ग्रेजुअली इंडिया ने महाराजा हरी सिंह के ऊपर जो अपना इन्फ्लुएंस है वो एक्सरसाइज करना शुरू कर दिया, और उसे फिर लेयर करने की कोशिश की कि इट वुड बी बेटर फॉर हिम टू ज्वाइन द इंडियन यूनियन, और उसके बड़े बड़े उसे फवायद अलकाब और बड़े बड़े तोहफेदार देने की जो है वो पॉलिटिक्स में एक बड़ा स्पेस देने की जो है बातें हैं.
लेकिन इधर से कश्मीरी रेजिस्टेंस था कि महाराजा हरि सिंह ऐसा नहीं कर सकते, आपने नहीं करना, क्योंकि यहाँ पे अदरवाइज पर ब्लड शेड होगा। इधर से पाकिस्तान ने भी खत लिखा है महाराजा हरि सिंह को, एंड नथिंग कंक्लूसिव इज बेसिकली कमिंग टू एन एंड। अचानक ये जब थोड़ा सा फील होना शुरू कर लिया कि महाराजा हैज बिकम इनडिसाइसिव, महाराजा कोई एक्ट नहीं कर रहा, शायद इस वजह से कि वो कश्मीर को एक इंडिपेंडेंट स्टेट बनाना चाहते थे, या वो इंडिया के साथ कोई बैकडोर डिप्लोमेसी में इन्वॉल्व थे, बैक चैनल्स के थ्रू इंडिया के साथ एक्सेशन करना चाहते थे। वहां पर उसने टाइम बाय टैक्टिक को इस्तेमाल करते हुए कश्मीरी जो रेजिस्टेंस आ रहा था वहां का, उसको कुचलना शुरू कर लिया। 30,000 people were massacred in 1947 in that particular resistance. यहां पर फिर अब चूंकि जाहिर सी बात है, इतना इतने ज्यादा लोगों का मार रहे हैं, तो दे हैड रिलेटिव्स इन पाकिस्तान। ये जो अभी हमारा कश्मीर है, गिलगित बल्तिस्तान या आजाद कश्मीर हम जिसे कहते हैं, यहाँ पे फिर मोबिलाइजेशन होना शुरू हो गई कि ये कैसे हो सकता है कि महाराजा हरि सिंह इस तरीके से जानवरों की तरह जो है वो लोगों को जबा करे। तो यहां से फिर जो रेजिस्टेंस है वो आना शुरू हो गई। नाउ इंडिया यूज दैट वेरी रेजिस्टेंस फ्रॉम पाकिस्तान, कि जी पाकिस्तान ने तो लश्कर भेज दिए, पाकिस्तान ने पठान भेज दिए, पाकिस्तान ने नॉन स्टेट एक्टर भेज दिए। इंडिया नाउ यूज दिस अपॉर्चुनिटी टू सेंड इट्स ट्रूप्स इन द ऑक्युपाइड कश्मीर। जैसे ही वहां पे फौजें पहुंची, उन्होंने महाराजा हरि सिंह से बाय वर्च्यू ऑफ फोर्स, बाय वर्च्यू ऑफ कुरुजन डॉक्यूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन करा लिया। एक थिंकिंग ये भी है कि महाराजा ने ऐसा कोई डॉक्यूमेंट साइन नहीं किया, लेकिन इवन इफ हम इस थिंकिंग को मान भी लें, तो जो डॉक्यूमेंट साइन किया हो गया था उसमें ये बात क्लियर कट अल्फाज में हमें मिलती है कि फाइनल जो डिसीजन है कश्मीर का, दैट विल बी डन बाय द कश्मीरी पीपल। और जो गिवन सिचुएशन है उसमें जो 4 से 5, 4 बल्कि जो सब्जेक्ट्स हैं वो इंडियन स्टेट के हैंड ओवर किए जा रहे हैं, नथिंग मोर देन दिस, नथिंग लेस देन दिस। लेकिन फिर उसके बाद जाहिर सी बात है, जब इंडिया ने भी वहां पर ह्यूमन राइट्स वायलेशन करना शुरू कर ली, सिविलियन पॉपुलेशन को मारना शुरू कर लिया, पाकिस्तान स्टेट वाज लेफ्ट विद नो ऑप्शन एक्सेप्ट कि भाई हम भी जो है वो एक्ट करें, और उस मैनर में एक्ट करें जो कि मैनर हमसे बेसिकली डिमांड करता है। सो फाइनली फिर इंडियन इंटरवेंशन हुई, पाकिस्तान ने भी फिर जो है वो स्टेट लेवल पे आर्मी मोबिलाइज कर ली, एंड इवेंचुअली हमने क्या देखा, हमने ये सिचुएशन बड़ी वाज़ेह होते हुए देखी कि पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान फर्स्ट इंडो पाक वॉर हुई। चंद दिन ये जंग चलती है, लेकिन उसी दौरान जिन्ना साहब की डेथ हो जाती है। नाउ दिस इज द मेजर सेटबैक टू द स्टेट ऑफ पाकिस्तान, कि हम फिर इस वजह से हमारी जो ओवरऑल अटेंशन थी वो डिस्ट्रैक्ट हो गई, पॉलिसी की कंसिस्टेंसी में मसला आना शुरू हो गया, नेशनल लीडरशिप वाज अंडर लेट्स स्टेक। एनीवेज उसके बाद फिर यूएन इंटरवेंशन हमें नजर आती है। This is the first time that Indian government actually put forward Kashmir issue in UN Security Council and United Nations. और वहां पे जब चैप्टर 6 है वो जो है उसमें ये बातें जो है वो की गई। एट द सेम टाइम यूएन कमीशन फॉर इंडिया और पाकिस्तान भी अपॉइंट की गई, और उसमें ये बातें की गई। एक तो ये दोनों ममालिक सीज फायर एग्रीमेंट करेंगे, सेकंड ये है कि पाकिस्तान जो है वो, पाकिस्तान के जो नेशनल्स हैं उन्हें कश्मीर से विथड्रॉ किया जाएगा, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द इवैक्यूएटेड एरिया बाय द लोकल अथॉरिटीज अंडर यूएन सीआईपी सुपरविजन एस्टैब्लिश की जाएगी, इंडियन ट्रूप्स का फेज विथड्रॉल होगा, और उसके बाद एक पार्शियल प्लेबिसाइट वहां पे कराया जाएगा। पाकिस्तानी नेशनल वहां से विथड्रॉ हो गए, लेकिन उसके बाद ये जितनी भी चीजें आपको सी, डी और ई में नजर आती हैं वो आज तक नहीं हुई। इवन ओवन डिक्सन प्लान हमें बाद में नजर आता है, जिसमें इस बात के ऊपर बड़ा गौर किया जाता है कि किस तरीके से प्लेबिसाइट मुमकिन है। ही कंक्लूडेड दैट इंडियंस नेवर वांट, मतलब इंडियन गवर्नमेंट इज नॉट विलिंग टू एक्चुअली गो फॉर द प्लेबिसाइट एज एन ऑप्शन, क्योंकि उसे डर है कि वो प्लेबिसाइट हार जाएंगे, लिहाजा दे आर ट्राइंग टू मेंटेन देयर ऑक्यूपेशन बाय वर्च्यू ऑफ फोर्स, नथिंग देन दैट। उसके बाद जो है वो एक और फियर भी इसका हमें कृष्णा मैनन की जो है वो उसमें नजर आता है कि अकॉर्डिंग टू कृष्णा मेमन जो हमें सिचुएशन नजर आती है कि कश्मीर वुड वोट टू ज्वाइन पाकिस्तान एंड वी वुड लूज इट। ये इंडियन थिंकिंग उसी टाइम एग्जिस्ट कर रही थी कि कश्मीरी इंडिया के साथ किसी सूरत में मिलना नहीं चाहते, लिहाजा इट वुड बी लेट्स से फैलेसी टू बिलीव कि भाई दे वुड ज्वाइन बेसिकली स्टेट ऑफ इंडिया।
خیر اس کے بعد یہ مسئلہ کیسے ایوالو ہوا، 1950s میں کشمیر کا اسٹیٹس ایوالو ہوتا گیا. آپ دیکھیں کہ پہلی جو میجر چینج آ جاتی ہے وہ یہ ہے کہ ایکسیشن آف جموں اینڈ کشمیر ٹو انڈیا از ریٹیفائڈ بائی دا اسٹیٹس کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی. اور جو شیخ عبداللہ مطلب یہ جو ہیں ابھی ہمیں نظر آتے ہیں، ان کی جو لیڈرشپ تھی، محبوبہ مفتی ان کے جو بڑے تھے، ان کا اس میں بڑا رول تھا. اب میں یہاں پہ کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ چلے کچھ پاکستان کا بھی جو ہے وہ اس پالیسی کو یا اس کاز کو لڑنے میں جو ہے وہ ویکنیسز ہیں، لیکن خود کشمیری جو لوگ تھے، لیڈرشپ تھی، ان کا بڑا کردار ہے انڈیا کو لیجٹمائز کرانے میں. 1957 میں یہ سچویشن اور زیادہ خراب ہو گئی، جس میں جموں اینڈ کشمیر کانسٹیٹیوشنل اسمبلی اپرووڈ کانسٹیٹیوشن. ٹھیک ہے، اور اس کے بعد یہ ہے کہ 1957 میں this issue was particularly referred to as the integral part of the Indian Union. پہلے صرف یہ تھا کہ this is a disputed region, now that became the internal matter of India. حالانکہ جواہر لال نہرو نے کشمیر میں چوک پہ کھڑے ہو کے کہا تھا کہ ہم یہاں پہ ریفرنڈم کرائیں گے، لیکن جو انہوں نے وعدہ کیا تھا وہ انہوں نے بالکل وفا نہ کیا. 1963 میں ہمیں چین اور انڈیا کے درمیان جنگ نظر آتی ہے. اس کے بعد انڈیا اور پاکستان کے فارن منسٹرز نے جو ہے وہ مذاکرات کیے اور تھوڑا سا آؤٹ آف باکس سلیوشن ڈھونڈنے کی کوشش کی، کہ جسے ہم بھٹو سروان سنگھ ٹاکس بھی کہتے ہیں، جس میں چناب فارمولے کے اوپر بات کی گئی. لیکن آج تک جو اس کی انفارمیشن ہے اسے دونوں ممالک بڑی حد تک جو ہے وہ ڈینائی کرتے ہیں. لیکن اس تمام تر چیزوں کے باوجود، تمام تر مذاکرات، تمام تر اتنی ڈیولپمنٹس کے باوجود کشمیر ایشو جو ہے وہ حل نہیں ہوا، حتیٰ کہ 65 میں دونوں ممالک کے درمیان جنگ ہوئی. اور جنگ کے بعد اب دونوں ممالک نے اس مسئلے کو اور جو ہے وہ فردر کمپلیکیٹ کر لیا. فار ایگزامپل پاکستان نے 1971 کی جنگ ہے، اس میں پاکستان کا ایک حصہ علیحدہ ہوا، تو we were a bit paranoid state. تو انڈیا نے by virtue of force ہم سے LOC کے اوپر یہ جو لائن آف کنٹرول ہے بیسیکلی سائن کرائی. 1974 میں ہم نے دیکھا کہ اب اس ایشو کی نیچر اور تبدیل ہونا شروع ہو گئی، اور وہ کیا ہو گئی کہ کشمیری اسٹیٹ گورنمنٹ بیسیکلی افرمڈ دیٹ the state is a constituent unit of India. پاکستان اس اکارڈ کو ریجیکٹ کر لیا. اب دیکھیں کشمیر کی جو لیڈرشپ ہے نا، وہ ہے پپٹ، جو کہ انڈیا کے ساتھ ملی ہوئی ہے. اس نے بیسیکلی سچویشن کو اس حد تک کمپلیکیٹ کر لیا ہے کہ اٹ از بیسیکلی ہارمنگ کشمیریز دا موسٹ. ایک اور اس میں میجر ڈیولپمنٹ آتی ہے پھر 1989 میں، جب یہاں پہ الیکشنز ہوتے ہیں، اور وہ الیکشنز بڑے رگڈ ہوتے ہیں. الیکشنز کو پہلے انڈیا پاپولرائز کراتا ہے کہ جی دیکھیں یہاں پہ جو اصل ریفرنڈم ہے وہ ابھی ہو رہا ہے، ہاؤ پیپل آر بیسیکلی کمنگ ٹو دا اسٹریٹس ٹو ایکچولی پارٹیسپیٹ ان ٹو دس ریفرنڈم. بٹ وہ تمام تر الیکشنز رگڈ تھے، اور ایک پاپولر اپرائزنگ ہوئی انڈیا میں، اور اس کا نام ہے کشمیری انتفاضہ، کشمیری اپرائزنگ. اس کے بعد اٹ واز ویری مچ ڈیفیکلٹ فار انڈیا ٹو ایکسرسائز کنٹرول اوور دس پرٹیکولر ریجن. اور اس ریجن میں 1989 کو اگر آپ تھوڑے سے گلوبل کانٹیکس میں دیکھیں تو دس از دا مومنٹ آف ریولیوشن آل اراؤنڈ دا ورلڈ. آپ دیکھیں کہ ایسٹرن یورپ میں 1989 میں ریولیوشنس آئے. آپ دیکھیں کہ 1989 میں سوویت یونین 88-89 میں جو ہے افغانستان سے ودرا کرنے کے اوپر مجبور رہا. اٹ واز دا سیم ایئر 1989 جس میں چائنا میں بڑی اپرائزنگ ہوئی اور جو اسٹوڈنٹس ڈیمانسٹریشن آنا شروع ہو گئی، جس میں لوگوں نے بڑا ڈیمانڈ کیا کہ چائنیز جو گورنمنٹ ہے دیٹ مسٹ اسٹیپ ڈاؤن. پیپلز یہ جو CCP ہے، چائنیز کمیونسٹ پارٹی ہے، اٹ مسٹ اسٹیپ ڈاؤن، ون پارٹی اسٹیٹ ختم ہونی چاہیے. ایک اکراس دی انٹرنیشنل ارینا ایک ویو ہمیں نظر آتی ہے. کشمیر واز ناٹ ایکسیپشن. لیکن جب اس کے باوجود بھی کوئی رزلٹ نہیں نکلا تو کشمیریز ور لیفٹ وتھ نو آپشن ایکسپٹ ٹو گو فار دا ملٹری آپشن. اور یہ وہ ٹائم ہے جس میں کشمیر میں ملیٹنسی کی شروعات ہوتی ہے. انڈیا پاکستان کو بلیم کرتا ہے کہ اٹ از اسپانسرنگ بیسیکلی ٹیررسٹ وائلنس ان آکوپائڈ کشمیر، لیکن پاکستان کہتا ہے کہ وی سمپلی extend our moral and diplomatic support to the movement. It is primarily because of the UN sponsored referendum and nothing than that. اس کے بعد انڈیا اس ایشو کو پولیٹیکل سے سیکیورٹی میں ٹرانسفارم کرتا ہے کہ دس از نو لانگر اے پولیٹیکل ایشو، دس از رادر اے سیکیورٹی ایشو.
और सिक्योरिटी मैटर में वो फिर कहते हैं कि कश्मीर की ये जो इंसर्जेंसी की मूवमेंट है उसको एक टेररिस्ट मूवमेंट में वो कन्वर्ट करना चाहते हैं ताकि इस पूरे कॉज को डिस्क्रेडिट किया जाए उस हद तक जिस हद तक पॉसिबल है। इवन 94 में कश्मीर में कुछ फॉरेनर्स जो है वो घूमने गए, उनको इंडियन गवर्नमेंट ने किडनैप कराया, इंडियन सिक्योरिटी फोर्सेस ने उन्हें प्रॉपर्ली बिहेव किया और इल्जाम लगाया कि ये जो कश्मीरी मिलिटेंट्स हैं उन्होंने जो है वो बेसिकली इन लोगों को बिहेव किया है ताकि कि नेशनल पब्लिक ओपिनियन में ये जो इंसर्जेंसी है, ये जो राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन की मूवमेंट है, इसे जिस हद तक डिस्क्रेडिट किया जा सके उस हद तक जो है वो चलाया जाए। 1989 के बाद आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो इंडिया और लेट्स से किस कदर ये जो कश्मीर है उसमें आपको मिलिटेंसी नजर आएगी अक्रॉस द बोर्ड। जो है वो लोग बिल्कुल तंग आ गए थे इंडियन स्टेट स्ट्रक्चर से कि द ओनली ऑप्शन दे आर लेफ्ट विथ टू इंश्योर देयर लाइफ लिबर्टी एंड परसूट ऑफ हैप्पीनेस, इट इज दिस पर्टिकुलर ऑप्शन। चैलेंज इसके बाद मिलिटेंसी हुई, उसके बाद फिर जो है वो 9/11 का इवेंट हो जाता है। नाउ देयर इज अ शिफ्ट कि भाई कश्मीर की मूवमेंट जो है वो लेजिटिमेट मूवमेंट नहीं रही, दैट इज अ टेररिस्ट मूवमेंट। मल्टीपल जो है वो वायलेंट ऑर्गेनाइजेशंस इमर्ज हुई, मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशंस इमर्ज हुई 1989 के बाद, और जो मिलिटेंट कश्मीरी नेशनलिज्म है दैट इवेंचुअली सीन सॉ द लाइट ऑफ द डे। अच्छा जी, इसमें पहली जो मूवमेंट इमर्ज हुई वो थी जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट। यासीन मलिक यासीन, ही इज द लिविंग सिंबल ऑफ कश्मीरी रेजिस्टेंस। उसके बाद है लश्कर तैयबा, उसका एक नैरेटिव बना डेथ बाय 1000 कट्स। आज भी हाफिज सईद को लेके इंडिया बहुत ही पाकिस्तान के खिलाफ जो है वो डिप्लोमेटिक जो है वो आउटक्राई कर रहा होता है। उसके बाद है जैश ए मोहम्मद, इट्स नैरेटिव इज डिवाइन वेंजेंस स्लो बट श्योर। उसके बाद है विद इन कश्मीर एक और मूवमेंट है हिजबुल मुजाहिदीन, बुरहान वानी जिसका कमांडर था, जिसने 2008 में कश्मीर के रेजिस्टेंस को रिवाइव किया। दैट इज प्रॉपर्ली इन इंडिजिनस लेट्स से मूवमेंट, कोई एक्सटर्नल उसे सपोर्ट नहीं है, इट इज एंजॉयिंग लोकल लेजिटिमेसी। और इसमें सबसे यूनिक बात यह है कि द यूथ इज पार्टिसिपेटिंग, यूथ इज बेसिकली फेड अप विद द इंडियन पॉलिसीज एट होम। So he is Yasin Malik. He is the living symbol of resistance. He has been put in तिहाड़ जेल और इसको बॉडी को पैरालाइज किया गया है। इसके कान में इंडियन गवर्नमेंट एंड सिक्योरिटी फोर्सेस हैं ड्रिल मशीन चलाई, इसको पैरालाइज किया गया अभी, बट ही इज सफरिंग स्टिल इन दी वर्स्ट पॉसिबल जेल्स दैट इवन ह्यूमैनिटी वुड बी ashamed of। पोस्ट 9/11 की जो डायनामिक्स हैं उसमें कश्मीर का जो नैरेटिव है उसमें हमें मुतअद्दिद तब्दीलियां नजर आती हैं। एक तो इंडिया और पाकिस्तान में जब 2002 में एक मिलिट्री स्टैंड ऑफ हुआ तो उसके बाद कश्मीर के ऊपर नेगोशिएशन हुए। मुशर्रफ ने इंडियन गवर्नमेंट को कहा कि अगर इंडियन गवर्नमेंट इस बात पर राजी हो जाए कि वो मसला कश्मीर को एक सीरियस मैनर में हल करेगी तो हम कश्मीर को यूएन एजेंडा से वापस ले सकते हैं। A tentative 4-point formula was presented, which included following things. मुशर्रफ ने कहा कि जी देखें अभी तक हमने जितने भी जो ऑप्शंस हैं वो ट्राई किए हैं, nothing concrete has so far been achieved. So what is the solution? We not only need to think out of box, but if necessary, we need to break that very box. बात ये की गई कि बॉर्डर्स टू रिमेन एज इट इज, मैप के ऊपर बॉर्डर सेम रहेंगे, लेकिन मूवमेंट ऑफ द पीपल विल बी अलाउड, फ्री मूवमेंट ऑफ द पीपल अक्रॉस द एलओसी। इंडियंस ने कहा कि जी देखें उसमें तो आईएसआई के एजेंट्स आएंगे, पाकिस्तान ने कहा कि ये भी तो मुमकिन है ना कि उसमें रॉ के एजेंट्स हैं वो भी आना शुरू हो जाए। खैर, एक तो ये बात हो गई। सेकंड ये थी कि सेल्फ गवर्नेंस नॉट द ऑटोनोमस, नॉट द सेल्फ गवर्नेंस नॉट द इंडिपेंडेंस, इस ऑप्शन के ऊपर जो है वो फोकस किया गया, जिसमें अब ये है कि दोनों ममालिक को फेस सेविंग मिल रही थी। इंडिया को भी ना कश्मीर मिल रहा था पूरा, पाकिस्तान को भी पूरा कश्मीर नहीं मिल रहा था, लेकिन कश्मीरियों को एक्चुअली रिलीफ मिल रहा था। सो मुशर्रफ एजेंडा वाज ड्रिवन टू एक्चुअली ब्रिंग रिलीफ टू द कश्मीरी मैसेज, क्योंकि वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। इंटरनल मैनेजमेंट के ऊपर बात की गई, ट्रेड, टूरिज्म, वाटर, सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट को मैक्सिमाइज कराने की बातें की गई। दीज वर द बेसिक जो है वो टूल्स। ट्रूप्स विथड्रॉल, हमने जैसे बात की कि दिस इज द मोस्ट मिलिटराइज जोन ऑन द अर्थ, तो इसके ऊपर फेस मैनर में ट्रूप्स विथड्रॉ करने की बात की गई। हमारी तो थोड़ी फोर्सेस हैं, इंडिया की तो 10 लाख फोर्सेस हैं कश्मीर में,
उसके बाद a joint supervisory mechanism to supervise the implementation of such troops, जिसमें फिर इंडिया, पाकिस्तान और कश्मीर सबके जो है वो रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे. So let's see what else we are going to discuss today regarding this particular topic. So let's talk about the updated dimension about this particular topic, Kashmir under BJP now. What are the major developments since BJP has come into power? What is its vision of Kashmir and how that vision is flawed and what is the future? जो बीजेपी रहा है उसे आप मुख्तलिफ जो है वो अदवार में कैटेगराइज कर सकते हैं. एक तो 1989 में जब से बीजेपी सरकार ने चंद सीटें हासिल कर लें तो उसका जो नैरेटिव था एक ये बन गया कि उसने किस तरीके से एक काम करना है, और वो ये है कि 3 काम इंडिया में आके करने हैं. एक, उसने जो बाबरी मस्जिद है, राम मंदिर को तोड़ के उसने बाबरी मस्जिद बनानी है. सेकंड, उसने बात की कि जो ट्रिपल तलाक का सिस्टम है वो ख़त्म करना है, यानी कि जो मुसलमानों की पर्सनल रिलीजियस प्राइवेट फ्रीडम है उन्हें ख़त्म करना है और उसके लिए एक रोड मैप बनाना है. तीसरा उनका ये नैरेटिव था कि हम जिस दिन पावर में हम आर्टिकल 370 को ख़त्म करेंगे. 10 साल बाद फिर उनकी हुकूमत आई, जब वाजपेयी की आई तो वाजपेयी वेंट टू कश्मीर विद अ न्यू नैरेटिव, शिफ्ट फ्रॉम द पॉलिटिकल नैरेटिव ऑफ इट्स पार्टी. उसने कहा कि हम कश्मीर का जो मसला है वो इन 3 लेवल्स के ऊपर, हम 3 सर्कल्स को सामने रखते हुए, कॉन्टेक्स्ट को सामने रखते हुए हल करेंगे. हम इंसानियत, कश्मीरियत और जमहूरियत, इन 3 प्रिंसिपल्स को सामने रखते हुए हम कश्मीर के मसले को हल करेंगे. लेकिन सच बात तो ये है कि इनमें से कोई एक भी प्रिंसिपल फॉलो नहीं किया, बल्कि तीनों प्रिंसिपल्स को फ्रीक्वेंटली इस हद तक वायलेट किया गया कि कश्मीर का मसला बीजेपी गवर्नमेंट के अंदर हमें ज्यादा से ज्यादा ह्यूमन राइट्स वायलेशन, लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर सीज फायर वायलेशन और कश्मीरियों के लिए जमीन तंग करने के मुतरादिफ नजर आया. उसके बाद 2014 में मोदी इरा शुरू होती है एंड दिस इज द dawn of the worst scenario for the Kashmiri people, in which we see that Indian answer to Kashmir question is simply to colonize it, nothing less than that. हम ये जब ये देखते हैं कि आज बीजेपी सरकार पावर में आ चुकी है तो कश्मीर के बारे में जो उनका विजन है ना वो ये है. I've written an article on that case for Kashmir in which I wrote that as Hindutva driven BJP wants Kashmir, not Kashmiris. The stage is set for building a new West Bank in Srinagar, a ghettoized Gaza and open sky prison in Jammu and Kashmir Valley, the subtle colonialism in Ladakh, and potentially the Holocaust of the generation of Kashmiris at the hands of the fascist forces of Hindutva. It will have serious consequences on the region and beyond, which are currently seen and which will later be seen. अगला स्टेप उन्होंने ये किया कि पुलवामा जो अटैक था उसका ब्लेम पाकिस्तान के ऊपर लगा लिया और बुनियाद ये थी कि कश्मीर को किस हद तक जो है वो मेन स्ट्रीम से हटाया जाए. लेकिन कश्मीर इशू बिकेम इंटरनेशनलाइज्ड. लेकिन जब वो दोबारा पावर में आए 2019 में तो ऑन अगस्त 5th they actually sealed the fate of Kashmir and the Kashmiri people. So they revoked Article 370, abolished Article 35A. We would analyze this particular debate as to what is Article 370, why did India revoke it, implications and possible options for Pakistan. Article 370 आप एक तो ये ज़हन में रख लें कि it was enacted in 1949 as the basis of relationship between the India and the disputed state of Kashmir. हमने जैसे बात की थी कि महाराजा हरि सिंह ने जो डॉक्यूमेंट ऑफ एक्सेशन है वो इंडिया के साथ जो डिस्प्यूटेड है कि वो साइन किया या क्या हुआ, लेकिन उसकी बुनियाद पर इंडिया ने 1949 में ये आर्टिकल जो है वो इनेक्ट किया. इसको ओवर द कोर्स ऑफ टाइम इसमें जो है वो जब डेलिब्रेशंस हुई तो 4 मेजर मैटर्स थे जो कि इसके तहत जो है वो इंडियन सरकार को दिए गए. फाइनेंस में, डिफेंस में, कम्युनिकेशन में और फॉरेन पॉलिसी में. इसके अलावा जितने भी मैटर्स थे वो इस सब्जेक्ट के तहत दिए गए कि वो कश्मीर की जो असेंबली है, अपनी कश्मीर की जो स्टेट है, उसकी जो गवर्नमेंट है वो पर्टिकुलरली डील करे. इवन इसके तहत हमने देखा कि कश्मीर को एक अलहदा झंडा भी दिया गया
कश्मीर could use its separate flag, अपने जो domestic laws हैं property और citizenship के वो बना सकता था, and those laws were entirely different from the laws that were otherwise existing in the broader Indian Union. थोड़ी सी यानी कि इंडिविजुअलिटी हमें इसकी बहरहाल नजर आती है। अच्छा, आप लोगों के इंफॉर्मेशन के लिए ये भी बताना जरूरी है कि ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ अरेंजमेंट एक्सक्लूसिव टू कश्मीर है, इट इज नॉट द केस, इट इज प्रेजेंट इन 28 अदर सच टेरिटरीज। आप देखें कि इंडिया में तो जाहिर सी बात है जो अलहदगी पसंद एलिमेंट है वो बहुत ज्यादा है, काफी सारे इंडिया में ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहां पर ये जो रेड टेररिज्म या माओइस्ट टेररिज्म जिसे वो कहते हैं वो एग्जिस्ट करता है। भारतीय आदिवासी जो लोग हैं वो बिल्कुल जो है वो आर्म्ड रेजिस्टेंस करके बैठे हैं इंडियन फ्यूडल एलीट के खिलाफ। तो काफी सारी जो ब्रेकअवे स्टेट्स हैं उनको अपने साथ मिलाने के लिए इस तरह की जो अरेंजमेंट है बहरहाल हमें मिलती है। तो बाकी भी दीगर रियासतों में ये अरेंजमेंट थी। कश्मीर वाज द 29th स्टेट्स, कश्मीर की खत्म की गई, बाकी की अब भी जो है वो एग्जिस्ट करती। इसके बाद हम क्या देखते हैं, ये आर्टिकल 370 जब रिवोक किया गया, ख़त्म किया गया, तो आप ये समझ लें कि ये सारी चीज़ें लैंड, पीपल, रिसोर्सेज जिनके ऊपर कश्मीर के लोगों का अदरवाइज अख्तियार होना चाहिए था वो इंडियन गवर्नमेंट के पास चला गया। नेक्स्ट थिंग इज आर्टिकल 35A। इसमें हमें क्या नज़र चीज़ें आती हैं, पहले तो ये याद रख लें कि दिस वॉज नॉट एक्सक्लूसिव। इन 1954 1927 में महाराजा हरी सिंह ने जो है वो इस तरह के कवानीन साजी की थी, जिसमें मकसद ये था कि ये जो आउटसाइडर सेटल होना चाह रहे हैं कश्मीर में फॉर लैंड, फॉर गवर्नमेंट जॉब्स, एजुकेशनल स्कॉलरशिप्स या फॉर द पर्पस ऑफ मैरिंग एंड बाइंग देयर सिटीजनशिप, वो सारा सिस्टम खत्म किया जाए। प्रेसिडेंशियल ऑर्डर के थ्रू 1954 में ये चीज इनकॉर्पोरेट की गई। अब भी ये जो रिवोक किया गया है ना, ये प्रेसिडेंशियल ऑर्डर के थ्रू ही रिवोक किया गया है और इसे सुप्रीम कोर्ट ही जो है वो रिवर्स कर सकती है और कुछ भी नहीं। उसके बाद हम जैसे हमने थोड़ी देर पहले बात की कि परमानेंट जो रेजिडेंशियल लॉ था दैट वाज फर्स्ट पुट इन प्लेस बाय महाराजा हरी सिंह हिमसेल्फ इन 1957, ताकि जो डेमोग्राफिक चेंजेस हैं कश्मीर में वो मुमकिन ना हो सके। अब चूंकि ये रिपील हो चुका है तो हम हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है कि हम इसकी जो लीगैलिटी है उसको डिस्कस करें। एजी नूरानी एक बहुत ही मायानाज वकील हैं इंडिया के, उनका कहना यह है कि भाई एक चीज को आपने जहन में जरूर रखना है। नंबर 1 ये है कि ये जो आर्टिकल है आर्टिकल 370 इसको रिवोक करने का सिंपल तरीकेकार ये है कि ये जो गवर्नमेंट होगी यानी कि जो लेजिस्लेटिव असेंबली होगी कश्मीर की वो पूरी होगी, वो डिसाइड करेगी कि क्या ये रिवोक होना है या ये रिवोक नहीं होना। जब वो रिवोक कर लेगी तो फिर लोकसभा, फिर राज्यसभा और फिर प्रेसिडेंट उसके ऊपर साइन करेगा। यहाँ पे ऑन द अदर एंड एक डिफरेंट हुआ है। प्रेसिडेंट ने एक बंदा अपॉइंट किया, गवर्नर जनरल राज जिसे हम कहते हैं, गवर्नर जनरल ऑफ जम्मू कश्मीर एक्चुअली बिकेम सब्स्टिट्यूट टू द ब्रॉडर लेजिस्लेटिव असेंबली। भाई ये कैसे हो सकता है? एक इंडिविजुअल कैसे तमाम तर लोगों को रिप्रेजेंट कर सकता है जब जम्मू एंड कश्मीर की जो लेजिस्लेटिव असेंबली है दैट इज नॉट फंक्शनिंग, दैट इज नॉट इन पावर। खैर आर्टिकल 370 रिवोक किया गया। अब ये जो है दिस कैन ओनली बी चैलेंज बाय द सुप्रीम कोर्ट। आर्टिकल 370 कैन ओनली बी मैनेज बाय द गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एज आई टोल्ड यू। सो पार्लियामेंट इसके ऊपर इसको एब्रोगेट नहीं कर सकती। कम से कम लॉ की जो बातें हैं वो हमें ये नजर आती हैं। दीगर काफी लोगों का ख्याल ये है कि एक प्रोविजन है that allows Article 370 to be altered by the presidential order, but that again requires the consent of the Constituent Assembly of the Jammu and Kashmir and is therefore void because the assembly was dissolved in 1956. कोई assembly exist कर ही नहीं रही तो आप फिर कैसे इस चीज को कर सकते हैं? ऐसी सूरत हाल में सुप्रीम कोर्ट को ही आगे आना होगा, अदरवाइज दिस वुड नॉट बी a law that could be changed. बीजेपी ने फिर इसे रिवोक क्यों किया? देयर वर मल्टीपल रीजंस बिहाइंड दैट। अब आपने ना यहाँ पे जो लेवल्स ऑफ एनालिसिस हैं वो समझने की कोशिश करनी है। नंबर पहली बात ये है कि इनफरादी तौर पर अगर हम देखें तो जो प्राइम मिनिस्टर मोदी हैं ही वांटेड टू डेमोन्स्ट्रेट हिज डिसाइसिवनेस टू हिंदुत्व ब्रिगेड्स कि भाई वो एक कैपेबल लीडर है, whatever he says he can deliver। जैसे उसने पिछले टर्म में मोनेटाइजेशन की बात की थी कि we will demonetize, तो उसने फिर करके दिखाई। हालांकि उसके कॉन्सिक्वेंसेस थे लेकिन they just wanted to demonstrate कि वो किसी भी हद तक जा सकते हैं on Pakistan, on Kashmir, on Dalits, on minorities, on everything in order to please its electoral
audience that is based on the Hindutva brigades. Secondly, ideological reasons थे इसके. हमने बात की थी कि हिंदुत्व का जो नैरेटिव है उसका उसका एसेंस ही यही था कि हमने जिस दिन पावर में आए तो उस दिन हम कश्मीर का जो स्पेशल स्टेटस है वो रिवोक करेंगे. तो हम अभी क्या देख रहे हैं, देयर इज द बाइफर्केशन. ठीक है, बाइफर्केशन हुई कश्मीर की, और इससे वो साबित ये करना चाह रहे हैं कि we have actually avenged the, let's say, the revenge of the centuries of the Muslim rule. कि अब हमारा मुकम्मल तसल्लुत आ गया मुसलमानों के ऊपर, और हिंदू जो एक्सट्रीमिस्ट है, आम हिंदू नहीं, जो कि मॉडरेट है, जो कि देखें हर रिलीजन में एक्सट्रीमिस्ट होते हैं, मॉडरेट्स होते हैं, और जो है वो सेंट्रिस्ट लोग होते हैं. तो जो हिंदू एक्सट्रीमिस्ट वोट है खास तौर पर, वो इस बात में बिलीव करता है कि हिंदू राष्ट्र इज इन मेकिंग, बड़ा हिंदू साम्राज्य इज इन मेकिंग. ये उसकी एक बेसिकली हमें कड़ी नजर आती है. तीसरी चीज हमें ये नजर आती है कि बीजेपी वाज बिकमिंग हाईली अनपॉपुलर एट होम, particularly on economic front. उसकी हमें मल्टीपल मिसालें मिलती हैं कि जैसे ग्रोथ रेट है that was slowed to 5.8% in the first quarter, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रही थी 6.1% तक, मेजर कॉर्पोरेशंस थी वो डाउन साइज कर रही थी, और काफी सारी तो उनमें ऐसी थी जो कि बैंक्रप्सी की स्टेट के ऊपर पहुंच चुकी थी. मल्टीपल और मिसालें आप दे सकते हैं कि जैसे जेट एयरवेज है वो बैंकरप्ट हो गई, एयर इंडिया ने 7600 करोड़ रुपए का नुकसान जो बर्दाश्त किया, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स ने जो है वो 30,000 प्लस ये जो एम्प्लॉइज से उनका एक जो है वो नुकसान थोड़ा सा बर्दाश्त किया. बड़ी बड़ी और कंपनीज थी. मतलब ओवरऑल हम देख रहे हैं कि इकोनॉमिक जो है वो लॉसेज हमें इंडिया में नजर आए. अब होना क्या चाहिए कि लोग फिर अगले इलेक्शंस में सवाल करेंगे कि व्हाई मोदी हैज नॉट डिलीवर्ड ऑन हिज प्रॉमिस to bring economic recovery in India. The best possible choice and the best possible option is to shift guns towards the state of Pakistan. कि अगर ये आज चीजें खराब हुई हैं तो ये सिर्फ इस वजह से हुई हैं क्योंकि पाकिस्तान यहाँ पे जो है वो मुदाखलत कर रहा है, और पाकिस्तान की तरफ नैरेटिव हो गया और साथ में कश्मीर की तरफ नैरेटिव हो गया. ना होल इंडियन पब्लिक इज बेसिकली बेफूल कि हमारा जो मैंडेट था वो इकोनॉमिक रिकवरी था, बट लुक वी हैव द सिचुएशन, वी हैव टू डील विद इट, एंड वी कैन ओनली डील विद इट वंस वी कम इन द मेजॉरिटी, सो वोट फॉर अस, एंड दे एक्चुअली वोटेड फॉर. एक और रीजन हमें नजर आता है उस वक्त की रीजनल सिचुएशन का. हमने देखा कि 2019 में अफगान पीस प्रोसेस वाज अंडरवे, और जो पाकिस्तान का नैरेटिव था उसकी जो है वो एक्नॉलेजमेंट हमें नजर आती है डोनाल्ड ट्रंप के एरा में भी, डोनाल्ड ट्रंप के लेटर्स में भी, रीजनल लेवल पे भी, और यूएस अफगानिस्तान जो पीस प्रोसेस है उसमें जो पहले दो मेजर पॉइंट्स थे कि जो विथड्रॉल होगा अमेरिका का वो किस तरीके से होगा, और जो काउंटर टेररिज्म एफर्ट्स होंगी वो किस तरीके से होंगी. इंडिया को नुकसान ये हो रहा था कि इंडिया वाज लिटरली गिवन जीरो रोल इन दैट पर्टिकुलर पीस प्रोसेस. तो ऐसी सूरत हाल में दिस वाज रिएक्शन टू दैट एज वेल कि कहीं पाकिस्तान का जो नैरेटिव है अब ज्यादा एक्सेप्टेबिलिटी ना ले ले. सो इंडिया थॉट कि दिस वाज द राइट टाइम टू प्ले कश्मीरी कार्ड, ताकि अमेरिकन भी जो है वो यहाँ से पुल आउट करने से पहले जो है ये कहते हैं कि जी साउथ एशिया में जो परमानेंट पीस एंड स्टेबिलिटी है वो बस अचीव आ चुकी है. एक और रीजन भी है इसमें जो कि ऐड हम कर सकते हैं कर सकते हैं फर्दर, और वो ये है कि 1972 से लेके आज तक इंडिया ने जो है वो एक कोशिश की है कि लाइन ऑफ कंट्रोल को परमानेंट बॉर्डर बनाया जाए, स्टेटस को जो है वो मेंटेन किया जाए. तो इंडिया की एक कोशिश रही है. 1948 में उन्होंने कहा कि कश्मीर इज एन इंटरनेशनल इशू, फिर उन्होंने कहा कि नहीं, इट इज अ बायलैटरल इशू बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान. फिर उन्होंने 2019 में फाइनली से कह दिया कि नो, इट इज एन इंटरनल मैटर ऑफ इंडिया एंड दे आर जस्ट पुशिंग इंटरनेशनल कम्युनिटी टू एक्चुअली सपोर्ट दैट वेरी स्टांस. इंटरनेशनल एनवायरनमेंट को अगर आप जहन में रख लें तो आज हम देख रहे हैं कि वी हैव सीन द राइज ऑफ द पॉपुलिस्ट लीडर्स एंड द यूनिलैटरलिज्म इज द करेंसी ऑफ द डे. तो यूनिलैटरलिज्म में मुख्तलिफ प्रेसिडेंट्स के मुख्तलिफ जो इंटरनेशनल लीडर्स हैं उनकी पॉलिसीज में नजर आता है. टेक इन केस फॉर एग्जांपल डोनाल्ड ट्रंप, ही एक्चुअली विथड्रू फ्रॉम ईरान न्यूक्लियर डील, फ्रॉम लेट्स से INF इंटरमीडिएट रेंज न्यूक्लियर फोर्सेस ट्रीटी, या फिर जो है वो पेरिस अकॉर्ड जो कि क्लाइमेट के ऊपर हुआ.
اس کے علاوہ ہم اگر دیکھیں تو زائنسٹ لیڈرز کی جو پالیسیز تھیں they were also unilateral, flying in the face of the international agreements, consensus and the let's say the overall let's say considerations and the charters. تو اس پورے کانٹیکس میں what India did was basically part of what was happening all around the world, however negative, however bad it was. اب اس کی امپلیکیشنز کیا ہوئیں؟ سب سے پہلے تو اس کی میجر امپلیکیشنز ہوئیں انڈیا اور پاکستان میں جو تھے وہ تعلقات بہت ہی زیادہ حد تک جو ہے وہ ڈاؤن گریڈ ہو گئے. پاکستان نے 14 اگست کو کشمیر کے ساتھ سولیڈیرٹی کے طور پر جو ہے وہ سیلیبریٹ کیا. سیکنڈ امپلیکیشن اس کی یہ ہوئی کہ جی یہ جو ہے وہ انڈین گورنمنٹ نے سوچا تھا کہ جی کشمیر ایشو جو ہے وہ انٹرنیشنلائز نہیں ہوگا. ناؤ دیٹ بیکیم ویری انٹرنیشنل. کشمیر کے اوپر میٹنگس آنا شروع ہو گئیں. انڈیا کی جو اپنی شکی ڈپلومیٹک پوزیشن تھی وہ سامنے آنا شروع ہو گئی اور انٹرنیشنل کمیونٹی showed its concerns about the potential genocide in the occupied کشمیر. اور اس میں ہمیں رپورٹ بھی ملتی ہیں کہ کس طریقے سے کشمیر واز ٹریٹڈ ایز اے جینوسائڈ رسک ایریا بائی جینوسائڈ واچ. پہلے بہت ہی خاموشی تھی. چوتھی لیول پہ ہم نے دیکھا کہ as the situation got tense, hawks on the both sides of the border reigned supreme. ہم نے دیکھا کہ پہلے ہی یہاں پہ کیسے پولیٹیکل ایکسٹریمزم اور ریلیجیس ایکسٹریمزم نظر آیا. اس کے بعد تو اور یہاں پہ پریشرز آنا شروع ہو گئے پاکستان کے اوپر کہ جو پاکستان کشمیر میں جو ہے وہ منع کر رہا ہے سرٹن وائلنٹ آرگنائزیشنز کو کہ وہ آپریٹ نہ کریں, وہ نیریٹو غلط ہے. بیکاز انڈین گورنمنٹ از بیسیکلی یوزنگ brute force, mass detentions, and there are wishes of Hindu MPs to marry beautiful Kashmiri girls, and the use of rape has now become in the state policy. So this only embolden the narrative of the extremist organizations that India is not sincere when it comes to resolution of the Kashmir cause. In fact, the Indian answer to Kashmir question is simply to colonize it. دیگر امپلیکیشنز بھی یہ ہوئی کہ انڈیا اور پاکستان میں سیریس رسک آف لمیٹڈ نیوکلیر وار ہمیں نظر آنا شروع ہو گئی. ایون انڈین ڈیفینس منسٹر went on telling international community کہ انڈیا might review its no first use policy, اور اگر ایسا ہوتا ہے تو this has only to maximize the security dilemma in an already volatile security environment, and that would see the irreversible consequences for the whole international region. اب ایک اور صورتحال ہمیں نظر آتی ہے کہ اتنے 25 سے 30 ہزار بچوں کو انڈین سیکیورٹی فورسز نے قید کر لیا. ان کے پیرنٹس کو یہ کہا کہ اگر آپ لوگوں نے احتجاج کیا تو ریممبر دیز چلڈرن ول ناٹ ریٹرن سیف. اب آپ دیکھیں آپ کس حد تک ایک آرگنائزیشن, کس حد تک اتنے لوگوں کو جو ہے وہ آپ خاموش کرا سکتے ہیں. ٹھیک ہے, 8 ملین 9 ملین آبادی ہے کشمیر کی, اور 1 ملین جو ہے وہ فوج ہے وہاں پہ انڈیا کی. 1 ملین بہت بڑی فوج ہوتی ہے. پاکستان کی ٹوٹل فوج 5.5 لاکھ ہے. ریزرو فورسز ملا کے بھی کوئی 8-9 لاکھ ہوتی ہے. انڈیا کی صرف اتنی فوج اور کشمیر میں ہے. اب اس کی وجہ سے ہوا یہ کہ جو کشمیر لیڈ کشمیر اونڈ انسرجنسی تھی, ناؤ دیٹ از بیسیکلی گیدرنگ مومنٹم, اینڈ دس از بیسیکلی میکنگ سچویشن ویری ٹینس وچ نیڈس ٹو بی ٹیکن انٹو اکاؤنٹ. انڈو پاک کرائسس کی وجہ سے جو افغانستان میں وائلنس ہے وہ بھی بہت حد تک انکریز ہوئی. جو نان اسٹیٹ ایکٹرز تھے انہیں آپریٹ کرنے کے لیے ایک نیا ریزن ملا. آنے والے دنوں میں ہم دیکھیں گے کہ there will be more polarization in Indian politics. There will be Hinduization of India, and failed attempts to erode Kashmiri identity will be more obvious than ever before, because we have witnessed that the only thing consistent in India is to colonize Kashmir. But we also believe that the more India will try to Indianize Kashmir, the more there will be the Kashmirization of India. India cannot simply oppress people would definitely rise like a phoenix from its ashes. I leave this question to you individuals. Will Kashmir become India's Afghanistan? کہ جیسے امریکہ نے بائی ورچو آف فورس اپنے سولوشنز مسلط کرنا شروع کر لیے افغانستان کے لوگوں کے اوپر, تو وی ہیو سین کہ الٹیمیٹ اینڈ یہ ہوا ہے کہ دیر از اے نیڈ آف دا پیس پروسیس, اور امریکہ نے بھی فائنلی پیس پروسیس کو ہی ہتھیار کے طور پر استعمال کیا. کیا ہم دیکھیں گے کہ آنے والے دنوں میں انڈیا کے لیے کشمیر بہت ہی بڑا نقصان جو ہے وہ ثابت ہوگا, بیکاز a storm is in making. Would it eventually implode?
सेकंड क्वेश्चन मैं आपके लिए थोड़ा सा छोड़ देता हूँ क्योंकि इसी डिबेट में से ही वो इसकी बातें निकलनी है, वो ये कि व्हाई इज कश्मीर इम्पोर्टेंट टू पाकिस्तान, एनालाइज दिस डिबेट इनटू जियोपॉलिटिकल, जियो इकोनॉमिक एंड जियो स्ट्रेटेजिक प्रिज्म। उसके बाद फिर क्या पॉसिबल सॉल्यूशंस हैं कश्मीर के, मल्टीपल सॉल्यूशंस के ऊपर देखें बात की गई। एक सॉल्यूशन बात की गई है कि प्लेबिसाइट और राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन, दिस इज इन लाइन विद द यूएन चार्टर, लेकिन उसके हमने जो है वो लिमिटेशंस देखी हैं कि मौजूदा हालात में ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है ही नहीं। इंडियन गवर्नमेंट की जो इंटरनेशनल पोजीशन है वो बड़ी स्ट्रांग है और इंटरनेशनल कम्युनिटी में कोई ऐसा एक्टर नहीं है जो कि उसके ऊपर जो है वो इन्फ्लुएंस एक्सरसाइज कर सके, पर्टिकुलरली फॉर द राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन। सो ऐसी सूरत हाल में हम देखते हैं कि प्लेबिसाइट राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन लुक्स गुड ऑन द पेपर बट इज practically impossible given the geopolitical considerations of this day and age. अच्छा जी, उसके बाद हम देखते हैं एक और चीज़ और वो ये है कि एक और ऑप्शन हमें नज़र आता है स्टेटस को, यानी कि लाइन ऑफ कंट्रोल को परमानेंट बॉर्डर बनाया जाए जैसे मौजूदा हालात में इंडियन गवर्नमेंट की कोशिश है। आई थिंक दैट सोल्यूशन वुड ओनली बैकफायर बिकॉज कश्मीरीज लिव ऑन बोथ साइड्स ऑफ लाइन ऑफ कंट्रोल। मुशर्रफ के 4 पॉइंट फार्मूला के तहत कश्मीरियों को रिलीफ मिला था बट दैट वाज नॉट द अल्टीमेट सोल्यूशन। सो स्टेटस को से जाहिर सी बात है अभी जो रेजिस्टेंस पाकिस्तान में नहीं है वो फिर पाकिस्तान को भी बहुत हद तक फेस करना पड़ेगा। इंडिपेंडेंट कश्मीर का ऑप्शन इट इज नॉट ऑन द टेबल, ये टेबल के ऊपर नहीं है, इट इज नॉट अंडर द डिस्कशन। लेकिन पाकिस्तान ने एक जो है वो जो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का बयान था उसमें एक चीज पाकिस्तान ने बहरहाल जरूर बयान की है कि हाँ इनके सर्कमस्टांसेस अलो और जब कश्मीर पाकिस्तान के साथ मिल जाएगा उसके बाद हम कश्मीरियों को एक चॉइस देंगे कि आया वो पाकिस्तान के साथ मिल जाए या वो अगर आज़ाद रहना चाहें तो वी वुड नॉट हैव एनी लेट्स से question on concern on that। 4 पॉइंट फार्मूला उसके हमने लिमिटेशंस बात कर ली कि दैट वाज कंसीडर्ड एज अ बिट्रेयल कि भाई हक खुद इरादियत लोगों का हक है और जाहिर सी बात है टेक्स टाइम बट वी नीड टू वेट। चुनाव फार्मूला ये 1963 में भुट्टो सरवान सिंह टॉक्स में डिस्कस किया गया था जिसका ऐसा ये था कि चुनाव के उस तरफ इंडिया इस तरफ हम, और ये जो चंद लेट से 100 और चंद हजार अगर ये जो ज़मीन की पैमाइश है और वहाँ पे जो कश्मीरी वैली है वो पाकिस्तान को मिल जाएगी और इस मसले को हल किया जाएगा। और ऑप्शन 3 ऑप्शंस के ऊपर अभी काम करेंगे जो कि आपने करने, एक तो ये कि नगोर्नो काराबाख और कश्मीर में क्या सिमिलैरिटीज हैं और डिफरेंसेस हैं। सेकंड, गुड फ्राइडे एग्रीमेंट जो कि नॉर्दर्न आयरलैंड में हमें मिलता है वो किस तरीके से कश्मीर में रेलिवेंट है। उसके बाद अब वैसे ही जो इंटरनेशनल अरीना में हम डिस्प्यूटेड टेरिटरीज देखते हैं उनको आप रिलेटेबल बनाएं कश्मीर के साथ। आप एक मिसाल के तौर पर ले लेंगे जर्मनी और फ्रांस में एक इशू था अल्सेस एंड लॉरेन का, एक पीस ऑफ लैंड के ऊपर दोनों ममालिक लड़ रहे थे। तो अल्टीमेटली हमने उसका फिर सोल्यूशन क्या देखा और क्या कश्मीर इशू इज द प्रोवर्बियल अल्सेस एंड लोरेन ऑफ द साउथ एशिया बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। इन चीजों को आपने देखना है। Future, we cannot predict future, but we can discuss it. Future depends on the peace process between India and Pakistan. If that peace process is successful, certainly two countries would have would definitely find a amicable solution to this particular issue. अगर दोनों ममालिक में peace process शुरू ही नहीं होता तो certainly state level पे अगर मसला नहीं हल होता तो non-state actors would only gain the ground। कश्मीर के ऊपर जो है वो आप एक मूवीज देख लें, एक शाहिद कपूर की मूवी है जो है वो हैदर, शायद उस मूवी का नाम, एक मशहूर डायलॉग है इसमें कि कश्मीर में जो सिचुएशन है वो ये है कि ऊपर अल्लाह नीचे फौज, ठीक है, दिन को पहरे रात को ताले और दिन को पहरे रात को तारे ताले, उसके ऊपर अल्लाह नीचे फौज। जिस तरीके से कश्मीरियों की बेहरमती की जा रही है, जिस तरीके से कश्मीरियों को मारा जा रहा है, this is literally हार्ट रेंच, ठीक है। तो आखिर में हम फिर दुआ ही कर सकते हैं कि जी कश्मीर का जो मसला है वो हल हो जाए, लेकिन दुआ के साथ आप और हम जैसे जो लोग हैं उन्होंने इसके लिए प्रैक्टिकल कोशिश करनी पड़ेगी। बड़ा दुख होता है जब कश्मीर डे के ऊपर लोगों से पूछा जाता है, ये टीवी चैनल्स हर जब इंटरव्यू लेते हैं कि जी आज किस दिन की छुट्टी है, तो लोगों को वैलेंटाइन डे तो याद रहता है लेकिन वो जो कश्मीरी लोगों के साथ जुल्म हो रहा होता है वो फिर
جو ہے وہ نظر نہیں آ رہا ہوتا. تو جو ہے وہ لمبی ہے غم کی شام، لیکن شام ہی تو ہے. تو کشمیریوں کو جو ہے وہ انشاءاللہ کسی نہ کسی دن ایک نہ ایک دن آزادی مل ہی جائے گی. ہم دیکھیں گے، لازم ہے کہ ہم بھی